پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گر گر لیے پھرتی ہیں پیغام صبا تیرا۔ ملک سخن کی ساہی تم کو رجا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، کیوں رجا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ دوستان محترم، عاشق مدینہ، مجدد اعظم دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام عشق و محبت، امام اہل سنت، الشاہ امام احمد رضا سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی پیدائش 10 شوال ہجری سن 1272 عیسوی سن 1856 میں سنیچر کے روز جوہر کے وقت بریلی شریف میں ہوئی۔ آپ کا پیدائشی نام محمد اور تاریخی نام المختار ہے۔ آپ کے دادا قطب الوقت حضرت مولانا رجا علی خان رضی اللہ عنہ نے آپ کا اسم شریف احمد رجا رکھا۔ خود اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے اپنی ولادت کی سن ہجری کو اس آیت کریمہ سے نکالا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ رب العزت نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ تو دوستان محترم، امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا رضی اللہ عنہ اللہ رب العزت کے ان خاص بندوں میں ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ رب العزت نے ایمان نقش فرما دیا، اور خود اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کر دیے جائے تو خدا کی قسم ایک پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر لکھا ہوگا محمد رسول اللہ جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ عنہ کا تن من دھن سب کچھ اللہ و رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم پر فدا اور قربان تھا۔ خود فرماتے ہیں مرا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ عنہ کیسے سچے عاشق خدا و مصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ خود فرماتے ہیں اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کر دیے جائے تو ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد رسول اللہ جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوگا۔ خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا 2 پارا کروں میں۔ دوستان محترم، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ عنہ کے والد گرامی حضرت مولانا نقی علی خان رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک عجیب و غریب خواب دیکھا اور اپنے والد محترم حضرت مولانا رضا علی خان رضی اللہ عنہ سے خواب بیان فرمایا، جس کی تعبیر میں قطب الوقت نے ارشاد فرمایا کہ خواب مبارک ہے، بشارت ہو اللہ تعالیٰ تمہاری پشت سے ایک ایسا صالح فرزند پیدا فرمائے گا، ایک ایسا نیک بیٹا پیدا فرمائے گا جو علوم کے دریا بہا دے گا اور اس کی شہرت مشرق و مغرب میں پھیلے گی۔ جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو آپ کے دادا جان قطب الوقت حضرت مولانا رضا علی خان رضی اللہ عنہ نے گود میں اٹھا لیا، پیار کیا اور فرمایا میرا یہ بیٹا بہت بڑا عالم ہوگا، اس کے چشمہ عرفان سے دنیا سیراب ہوگی، ملک سخن کی شاہی تم کو رجا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ دوستان محترم،
आला हजरत इमाम अहमद रजा रदी अल्लाह अन्हु के दादा हजरत मौलाना रजा अली खान रदी अल्लाह अन्हु सनद याफ्ता आलिम फाजिल मुफ्ती मुहद्दिस थे। आप देखें एक मर्तबा का वाक़िया है कि मुशरिकीन के त्यौहार होली के दिन कुतुबुल वक्त हजरत मौलाना रजा अली खान रदी अल्लाह अन्हु अपने कुछ अहबाब के साथ एक गली से गुजर रहे थे कि मकान के ऊपर से एक औरत ने आप पर रंग फेंक दिया। आपने छत के ऊपर नजर डाली और इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह उस औरत ने मुझे रंगा है तो उसको रंग दे। साथ वाले ये समझ रहे थे कभी औरत मकान के ऊपर से नीचे गिरेगी और खून में रंग जाएगी, मगर अल्लाह वालों की ज़बान अक़दस से निकले हुए अल्फाज की तासीर कुछ और थी। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि वो औरत आपकी खिदमत में आई और कलमा शरीफ पढ़कर मुसलमान हो गई। इसी तरह जमाने ने अपने माथे की आंखों से देख लिया कि अल्लाह ने अपने वली कुतुबुल वक्त की जबान से निकली हुई बात को पूरी फरमा दी और उस औरत को इस्लाम और ईमान के रंग में रंग दिया। निगाह वली में वो तासीर देखी, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। दोस्तों, आला हजरत इमाम अहमद रजा रदी अल्लाह ताला अन्हु के दादा आलिम फाजिल मुफ्ती मुहद्दिस और मशहूर जमानाई वली और बाकरामत कुतुब थे। तो आला हजरत इमाम अहमद रजा रदी अल्लाह अन्हु का घराना विलायत कुतुबियत और करामत रूहानियत का घराना था। दोस्तान मोहतरम, आप देखें आला हजरत इमाम अहमद रजा रदी अल्लाह अन्हु के वालिद मोहतरम हजरत मौलाना नकी अली खान रदी अल्लाह अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तजाबुद दावात बनाया था। आप जो भी दुआ फरमाते अल्लाह आपकी दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता। अल्लाह ताला जब अपने किसी बंदा को महबूब और मकबूल बनाता है तो उसको विलायत का अजीम मनसब अता फरमाता है, और जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत का वली हो जाता है तो उसकी दुआ को कबूलियत के शर्फ से सरफराज फरमाता है। तो साबित हुआ, पता चला कि इमाम अहले सुन्नत अश-शाह इमाम अहमद रजा रदी अल्लाह अन्हु एक आलिम फाजिल मुहद्दिस और फकीह और वली कामिल के फर्जंद थे। आप देखें कौन आला हजरत इमाम अहमद रजा रदी अल्लाह अन्हु के बचपन का जमाना है। आपकी बिस्मिल्लाह खानी का वक्त है। बिस्मिल्लाह खानी के वक्त अपने उस्ताद मोहतरम से इस कदर ऊंचे सवालात किए कि उस्ताद मोहतरम दंग रह गए और जवाब न दे सके। तो आपके दादा कुतुबुल वक्त हजरत मौलाना रजा अली खान रदी अल्लाह अन्हु उस वक्त वहां मौजूद थे। आपके वालिद मोहतरम हजरत मौलाना नकी अली खान रदी अल्लाह अन्हु भी वहां पर मौजूद थे और अपने बेटे अपने शहजादे के सवालात सुन रहे थे। बल्कि आपके दादा कुतुबुल वक्त हजरत मौलाना रजा अली खान रदी अल्लाह अन्हु आपके सवालात को सुनकर जोशे मोहब्बत में आपको गले लगा लिया और दिल से दुआएं दी और सारे सवालों का जवाब तसल्ली बख्श अता फरमाया। और बातों ही बातों में इसरार व हक़ाइक़ रुमूज व इशारात के दरियाफ्त व इदराक की सलाहियत आला हजरत इमाम अहमद रजा के कल्ब व दिमाग में बचपन ही से पैदा फरमा दी, जिसका असर बाद में सपन अपनी नियत में सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा के कदम ब कदम है तो तरीकत में सरकार गौसुल आजम के नाइब है। खूब फरमाया आलिम बामल खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हजरत मौलाना नईमुद्दीन साहब सिद्दीकी रिजवी अलैहि रहमाने के रस्म बिस्मिल्लाह में था किस कदर ऊंचा सवाल, महवे हैरत अंजुमन थी वाह ये नूरी जहन। दोस्तान मुहतरम, आला हजरत इमाम अहमद रजा रदी अल्लाह अन्हु की उम्र जब 4 साल की हुई तो 4 साल की उम्र में आपने कुरान पाक का नाजरा मुकम्मल कर लिया, यानी सही तरीके से कुरान पाक को अंदर देखकर पढ़ना सीख लिया। इसी तरीके से आला हजरत इमाम अहमद रजा रदी अल्लाह अन्हु की उम्र शरीफ जब 13 बरस 10 महीने 5 दिन की हुई तो आप आलिम फाजिल मुफ्ती मुहद्दिस होकर फारिक तहसील हो गए। आला हजरत इमाम अहमद रजा रदी अल्लाह अन्हु
बचपन ही में तकवा, तहारत, इत्तिबाई सुन्नत, पाकीज़ा अखलाक और हसन सीरत के औसाफ से मुजय्यन हो चुके थे। आप देखें आला हजरत इमाम अहमद रजा रज़ी अल्लाह अन्हु के बचपन के ज़माना में जो मौलवी साहब आपको पढ़ाया करते थे, एक दिन बच्चों ने उनको सलाम किया तो मौलवी साहब ने जवाब दिया जीते रहो। उस पर आला हजरत ने मौलवी साहब से फरमाया ये तो सलाम का जवाब न हुआ, वालेकुम सलाम कहना चाहिए था। मौलवी साहब सुनकर बहुत खुश हुए और आपको बहुत दुआएं दी। तो आला हजरत इमाम अहमद रजा रज़ी अल्लाह अन्हु ने 6 बरस की उम्र में मालूम कर लिया था कि बगदाद शरीफ किधर है। फिर उस वक्त से दमे आखिर तक कभी भी बगदाद शरीफ की जानिब पांव नहीं फैलाया। ये है इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसी तरीके से आप देखें कि आला हजरत इमाम अहमद रजा रज़ी अल्लाह अन्हु के बचपन का जमाना था। आपके पहले रोजे की इफ्तार की तकरीब बनाई जा रही थी। रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना था, सख्त गर्मी पड़ रही थी, जिसकी वजह से आपके वालिद गिरामी हजरत मौलाना नकी अली खां रज़ी अल्लाह अन्हु आपको साथ में लेकर एक कमरे में तशरीफ ले गए, जहां फिरनी के प्याले चुने हुए थे, खाना रखा हुआ था। आपके वालिद मोहतरम ने फरमाया खा लो। आला हजरत ने अर्ज की अब्बा हुजूर मैं कैसे खा लूं, मेरा तो रोजा है, कैसे खा लूं। वालिद मोहतरम ने फरमाया बच्चों का रोजा ऐसा ही होता है, मैंने दरवाजा बंद कर दिया है, कोई देखने वाला नहीं है, किसी को खबर न होगी, चुपके से खा लो। तो आला हजरत जवाब देते हैं अब्बा हुजूर जिसके हुक्म से रोजा रखा है वो तो देख रहा है, जिसके हुक्म से रोजा रखा है वो तो देख रहा है। ये सुनते ही आपके वालिद मोहतरम की आंखों से आंसू छलक पड़े, कमरा खोल कर आपको बाहर ले आए। दोस्तान मोहतरम तो आप देखें आला हजरत इमाम अहमद रजा रज़ी अल्लाह अन्हु को जब बचपन में मारिफत हक ताला की ये शान थी, तो जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको मुजद्दिद का मनसब आलिया अता फरमाया होगा, उस वक्त मारिफत रब ताला की शान का आलम क्या होगा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे खुद बता तेरी रजा क्या है। दोस्तान मोहतरम इसी तरीके से आप देखें एक मर्तबा का वाकया है कि आला हजरत इमाम अहमद रजा रज़ी अल्लाह अन्हु के बचपन के ज़माना में उस्ताद गिरामी से कुरान करीम की एक आयत करीमा पढ़ रहे थे। उस्ताद मोहतरम बार बार जबर पढ़ाते, मगर आला हजरत रज़ी अल्लाह अन्हु जेर पढ़ते थे। उस वक्त आपके दादा कुतुबुल वक्त हजरत मौलाना रजा अली खां रज़ी अल्लाह अन्हु वहां मौजूद थे और देख रहे थे। तो आपके दादा कुतुबुल वक्त मौलाना रजा अली खां रज़ी अल्लाह अन्हु वहां से उठे और कुरान मजीद को देखा तो वाकई कातिब ने गलती से जेर की बजाय जबर लिख दी थी। दादा जान ने फरमाया जिस तरह उस्ताद साहब पढ़ाते थे तुम इस तरह क्यों नहीं पढ़ते थे। तो आला हजरत इमाम अहमद रजा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज की दादा हुजूर मैं चाहता था कि इसी तरह पढ़ूं जिस तरह मेरे उस्ताद मोहतरम पढ़ाते थे, मगर जबान पर काबू न था। दादा जान कुतुबुल वक्त ने फरमाया खूब और मुस्कुराकर सर पर हाथ फेरा और दुआएं दी। उस्ताद मोहतरम ने फरमाया बच्चा सही पढ़ रहा था, दरअसल कातिब ने गलत लिख दिया था और खुद इमाम अहमद रजा ने अपने दस्ते अक़दस से तसहीह फरमा दी। इसी तरीके से आप देखें आला हजरत इमाम अहमद रजा रज़ी अल्लाह अन्हु की खुदादाद काबिलियत और जहानत का यह आलम था। उस्ताद जो सबक पढ़ते एक दो बार देखकर किताब बंद कर देते, मगर जब उस्ताद सबक सुनते तो लफ्ज ब लफ्ज सुना देते। यह हालत देखकर उस्ताद सख्त मुताज्जिब हुए। एक दिन उस्ताद मोहतरम ने कमरा बंद कर दिया, कहने लगे अहमद रजा सच सच बताओ तुम इंसान हो या जिन्नात हो, मुझको पढ़ाने में देर लगती है, तुम्हें याद करने में देर नहीं लगती। तो आला हजरत इमाम अहमद रजा रज़ी अल्लाह
अल्लाह अन्हु ने खुद फरमाया कि साहब ये सारे उलूम सरकार दो आलम का करम है, यानी मुझको सारे उलूम सिखाने वाले कोई और नहीं, मेरे प्यारे आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दोस्तों, यही वजह है कि आला हजरत इमाम अहमद रजा रज़ी अल्लाह अन्हु के इल्म का जवाब पूरी दुनिया मिलकर नहीं ला सकती। उसकी वजह साफ जाहिर है कि महबूब खुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने महबूब उम्मती अहमद रजा को सिखाया और पढ़ाया है। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को तालीम दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला हजरत इमाम अहमद रजा को पढ़ाया। तो सुन लो, अल्लाह के पढ़ाए हुए रसूलुल्लाह का कोई जवाब नहीं है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए आला हजरत इमाम अहमद रजा का 14वीं सदी में कोई जवाब नहीं है। इसीलिए आला हजरत खुद फरमाते हैं, मुल्के सुखन की साही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिम तो आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, मेरी आवाज किसी तक पहुंचे या ना पहुंचे, किसी के दिल पर असर करे या ना करे, मैं कोशिश करके अपने हिस्से का फर्ज अदा करता रहूंगा। अगर आपको भी मेरी कोशिश अच्छी लगे तो इस पैगाम को अपने दीगर दोस्तों तक फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए जरूर पहुंचाइएगा। न्यूज़ चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे।